Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna Binte Shehzad. Dear students, आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 7 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज ईद उल अज़हा. आज के इस यूनिट में हम ईद उल अज़हा की देखेंगे रीडिंग. तो सबसे पहले इस यूनिट को पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि क्या आपको पता है मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं? यस, 2 ईदें मनाते हैं. ईद उल अज़हा कौन सी ईद होती है? ईद उल अज़हा वो वाली ईद होती है जिस ईद पर हम एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि जानवरों की कुर्बानी करते हैं. इसका बैकग्राउंड क्या है, आइए चलते हैं वो देखते हैं. स्टार्ट रीडिंग. ज़ैनब एंड सालेहा आर एट होम. दे आर हैप्पी एज द फेस्टिवल ऑफ ईद उल अज़हा इज कमिंग नियर. दे आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस टू देयर पेरेंट्स. व्हाट इज ईद उल अज़हा? आस्क्ड ज़ैनब. Eid al-Azha is a festival of sacrifice. In a dream, Allah subhanahu wa ta'ala commanded Hazrat Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son named Hazrat Ismail alayhi salam. Shaitan attempted to confuse Hazrat Ibrahim alayhi salam and tempted him not to perform the act. But Hazrat Ibrahim alayhi salam drove him away. Allah subhanahu wa ta'ala sent the angel Jibreel alayhi salam with the ram to sacrifice. The celebration of Eid al-Azha takes place on the 10th of Zilhajj. The mother said. How is Eid al-Azha celebrated? Asked Saleha. Eid al-Azha is traditionally celebrated with the sacrifice of lamb, goat, cow, camel or other animals. The meat of the sacrificial animals is shared into 3 parts equally among family, friends and the needy. The Muslims perform prayer of Eid in a masjid or in an open ground, the mother clarified. How is Eid al-Azha different from Eid al-Fitr? Asked Zainab. There are 2 Eids celebrated by the Muslims in a year. Eid al-Fitr occurs at the end of the Ramazan. Ramadan is the month in which Allah subhanahu wa ta'ala revealed the first verses of Holy Quran to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eid al-Azha takes place about 2 months after Eid al-Fitr at the end of annual Hajj. The date of both the Eids are the same every year according to the Islamic lunar calendar. There is sacrifice of the animal on the day of the Eid al-Azha. This differentiates the 2 festivals, the mother added. How was Hazrat Ismail alayhi salam saved and what lesson we get from this event? Asked Saleha. This was a miracle of Allah subhanahu wa ta'ala and it proved that he has command over all the things, he known and the unknown. The known and the unknown. It is because of this holy incident that the Muslims now celebrate Eid al-Azha every year. The act of sacrificing animals also refreshes our faith in Allah subhanahu wa ta'ala and we recognize that all blessings come from Allah subhanahu wa ta'ala alone. A true Muslim who has a firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala tries to follow all his commands sincerely and obediently. The father added. How should we prepare ourselves on the day of Eid? Asked Zainab. The sunnah of Eid include to wear the best clothes that one has, to perform ghusl, to use miswak, to apply scent, to reach the place of prayer early, said father. Both Zainab and Saleha thanked their parents for providing them with such great information about Eid al-Azha and Eid al-Fitr. What lesson do you get from Eid al-Azha? क्या लेसन, क्या सबक देती हैं हमें ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला पे अपना ईमान, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए. अल्लाह ताला हमारे लिए अगर कोई आजमाइश भेजते हैं तो अल्लाह ताला उसका सलूशन भी देखते हैं. अगर हम अल्लाह ताला पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट रखेंगे जो कि रखना चाहिए तो अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किलों से निकलने की जो है वो सलूशन भी देंगे. और इसके साथ साथ अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाते भी हैं, तो हमें हर हाल में अल्लाह के हुक्म की तकमील करनी चाहिए. ये देती है हमें सबक ईद उल अज़हा. तो आइए चलते हैं अब कुछ ग्लॉसरी की तरफ. जी, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके हम मीनिंग्स देखते हैं. फेस्टिवल क्या होता है? एक त्यौहार. ये वो टाइम होता है जिसको हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. टेम्प्ट का मतलब है परस्यू करना. रिवील, किसी चीज़ को डिस्क्लोज या शो करना, लोगों के सामने लेकर आना. कमांड, हुक्म देना, टू ऑर्डर. सैक्रिफिशियल, इसका मतलब है वो चीज़ जिसकी कुर्बानी की जाए. क्लैरिफाई, किसी चीज़ को क्लियर करवाना. डिफरेंशिएट, यानी कि 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंस देखना. बिलीव,
बिलीव से मुराद एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जिसका मानना होता है कि ये चीज़ ट्रू है। साथ फॉरगिवनेस से मुराद है माफ़ी देना। यस, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। ज़ैनब और सालेहा घर पर हैं। ईद उल अज़हा के करीब आने पर वो खुश हैं। वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ सवालात करती हैं। ईद उल अज़हा क्या है? ज़ैनब ने पूछा। ईद उल अज़हा कुर्बानी का त्यौहार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें। शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और उनको वर्गलाया कि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल ना करें, लेकिन उन्होंने इसे भगा दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मेंढा देकर कुर्बानी के लिए भेजा। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। वालदा ने कहा, ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है? सालेहा ने पूछा। ईद उल अज़हा रवायती तौर पर भेड़, बकरी, गाय और ऊँट या दीगर जानवरों की कुर्बानी के साथ मनाई जाती है। कुर्बानी के जानवरों का गोश्त 3 हिस्सों में यकसा तौर पर अहले खाना, दोस्तों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। मुसलमान ईद की नमाज मस्जिद या खुले मैदान में अदा करते हैं, वालिदा ने वाज़िया किया। ईद उल अज़हा ईद उल फितर से कैसे मुख्तलिफ है? ज़ैनब ने पूछा। मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं। ईद उल फितर रमज़ान के आखिर में होती है। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की पहली आयत हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। ईद उल अज़हा सालाना हज के इख्तिताम पर ईद उल फितर की तकरीबन 2 माह बाद होती है। दोनों ईदों की तारीखें इस्लामी कमरी तकमीम के मुताबिक हर साल एक जैसी होती हैं। ईद उल अज़हा के दिन जानवरों की कुर्बानी करना होती है। ये दोनों त्योहारों में फ़र्क करता है। माँ ने मज़ीद कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया गया और इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? सालेहा ने पूछा। यह अल्लाह का मुअज़्ज़ा था और इससे साबित हुआ कि अल्लाह हर चीज़ पर हुक्म रखता है, मालूम और नामालूम। इसी मुकद्दस वाक़े की वजह से अब मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। जानवरों की कुर्बानी का अमल भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पर हमारे ईमान को ताज़ा करता है और हम तस्लीम करते हैं कि तमाम नेमतें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आती हैं। एक सच्चा मुसलमान जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर पुख्ता यकीन रखता है, वो इसके तमाम अहकामात पर खुलूस और अतात के साथ अमल करने की कोशिश करता है। वालिद ने मज़ीद कहा, ईद के दिन हमें खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? ज़ैनब ने पूछा। ज़ैनब और सालेहा दोनों ने अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के बारे में इतनी अच्छी मालूमात फराहम की। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।